Hello everyone, it's a fifth lecture of CPC and in this lecture we'll understand pecuniary jurisdiction. Along with pecuniary jurisdiction we'll also understand original jurisdiction and subject matter jurisdiction. आज की क्लास में हम समझेंगे कि pecuniary jurisdiction क्या होता है और उसके साथ original jurisdiction और subject matter jurisdiction को भी हम समझेंगे. So let's start today's class. Okay, pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction. Pecuniary means monetary. Pecuniary means monetary. So it's a monetary jurisdiction. Means a jurisdiction related to money. A jurisdiction related to money. हिंदी में इसको बोला जाता है आर्थिक क्षेत्राधिकार या फिर धन अधिकारिता. आर्थिक क्षेत्राधिकार या धन अधिकारिता इसको हिंदी में बोला जाता है. A jurisdiction related to money. Now in the previous class I told you that the respective state governments decides the pecuniary limits of every civil code. जो respective state governments होती हैं वो decide करती है कि civil codes की pecuniary limit क्या होगी. इतने से इतने amount या value तक का matter ये civil code decide कर सकता है, trier decide कर सकता है. इतने से इतने amount या value तक का matter ये civil code try and decide कर सकता है. So this is decided by the respective state governments. Right. Now pecuniary jurisdiction, so the pecuniary limits are decided by the respective state governments. Pecuniary jurisdiction is given under section 6 of CPC. Section 6 में pecuniary jurisdiction दिया गया है. Before reading section 6, let's understand the subordination of courts which is given under section 3 of CPC. Subordination of courts, kind of hierarchy of civil courts. Section 3, subordination of court. Subordination of courts. कौन सा कोर्ट किस कोर्ट का सबॉर्डिनेट है? This is given under section 3, a kind of hierarchy of civil courts. Now it says district court is subordinate to high court, and to the high court and the district court, civil court is subordinate. Civil court means civil judge. In civil judge, senior division is there. Civil judge, senior division, and subordinate to civil judge senior division, civil judge junior division is there. Civil judge junior division. And at the bottom there is court of small causes या फिर small causes court. Small causes court. Small causes court. So this subordination of courts is given under section 3 of CPC. District court is subordinate to high court. District court high court के subordinate होता है, उसके नीचे होता है, और district court के और high court के नीचे होता है civil court means civil judge. Civil judge में civil judge senior division होता है और उसके नीचे civil judge junior division होता है, and then there is at the bottom court of small causes या फिर small causes court. Now my question to all of you is, you've got a cause of action, somebody has violated your civil right, so you've got a cause of action, you can institute a suit against this person who has violated your civil right. आपका civil right किसी ने violate कर दिया तो आपके पास cause of action आ गया कि आप इस person के against civil suit institute कर सकते हो. Now can you institute this civil suit in any of these courts? क्या ये आपकी मर्जी है? क्या ये will it depend on your desire that कि आप किसी भी कोर्ट में जाए और सूट इंस्टीट्यूट कर दे, आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके सूट इंस्टीट्यूट कर दे या सीधा सिविल जज सीनियर डिवीजन के पास जाके सूट इंस्टीट्यूट कर दे? क्या ये आपकी मर्जी है? Do you have this choice that you can go to any of the courts and you can institute the suit,
जो भी कोर्ट आपको सही लगे, जो भी कोर्ट आपको अच्छी लगे, आप वहां पे जाओ और सूट इंस्टीट्यूट कर दो? द आंसर इज नो। तो कौन से कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होगा और ये कहां पे लिखा हुआ है? फॉर दिस सेक्शन 15 इज देयर। सेक्शन 15 सेज कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। मैंने आपको सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स बताया कि हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबऑर्डिनेट है सिविल कोर्ट, मींस सिविल जज। इन सिविल जज सीनियर डिवीजन और उसके नीचे सिविल जज जूनियर डिवीजन, एंड एट द बॉटम देयर इज स्मॉल कॉजेज कोर्ट। नाउ मैंने आपसे पूछा कि क्या आपकी मर्जी है कि आप किसी भी कोर्ट में जाके अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर दे इफ यू गॉट अ कॉज ऑफ एक्शन, इफ समबडी हैज वायलेटेड योर सिविल राइट? देन द आंसर इज नो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। दिस इज नॉट योर चॉइस दैट यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ द कोर्ट्स and you can directly go and institute the suit. No. Court in which suits to be instituted, it is given under section 15 of CPC. सेक्शन 15 CPC में दिया हुआ है कि किस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है। सेक्शन 15 of CPC, court in which suits to be instituted, court in which suits to be instituted. It reads as, every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it. Every suit shall be. Now the word shall has been used here, means it's a mandatory provision. Every suit shall be instituted in the court of lowest grade. सबसे लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट, मतलब सबसे जो नीचे जो कोर्ट होगा उसमें आपको इंस्टीट्यूट करना है। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, एंड दिस लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई योर मैटर, टू ट्राई योर सूट। ये कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, मतलब इसके पास ज्यूरिस्डिक्शन भी होना चाहिए आपके सूट को ट्राई करने का एंड डिसाइड करने का, राइट? Court in which suits to be instituted, every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it. Competent to try it. Every suit shall be instituted. It's a mandatory provision कि हर सूट को इस तरीके से कहां पे इंस्टीट्यूट करना है? Every suit shall be instituted. हर एक सूट इंस्टीट्यूट होगा कहां पे? In the court of lowest grade. जो सबसे लोवेस्ट कोर्ट होगा, जो सबसे नीचे का कोर्ट होगा, वहां से आप शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं कि आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच गए, ऐसा नहीं कि आप सीधा हाई कोर्ट में पहुंच गए। The general rule ये है that every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it. This lowest court must be competent, means this court must have the jurisdiction to try your matter, to try your suit. इसके पास jurisdiction भी होना चाहिए, subject matter jurisdiction, pecuniary jurisdiction और territorial jurisdiction की भी यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, right? So this court, this lowest grade court must be competent. Right? So section 15 says that every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it, means lowest competent court. Lowest competent court. सिर्फ lowest नहीं होना चाहिए, lowest के साथ साथ वो competent भी होना चाहिए, उसके पास पावर या फिर अथॉरिटी भी होना चाहिए कि आपके सूट को वो ट्राई कर सके और डिसाइड कर सके, राइट? सो सेक्शन 15, court in which suits to be instituted. Section 3, subordination of courts, and section 15, court in which suits to be instituted. हर एक सूट इंस्टीट्यूट होगा सबसे लोवेस्ट ग्रेड कोर्ट में. दिस इज अ जनरल रूल, ये जनरल रूल है. इन केस ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आप डायरेक्ट जा सकते हैं. अगर एग्जाम्पल को वो हम डिस्कस करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, बट एज अ जनरल रूल every suit shall be instituted in the court of lowest grade competent to try it, means lowest competent court.
लोवेस्ट भी होना चाहिए, सबसे नीचे का कोर्ट भी होना चाहिए, और वो कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए, उसके पास jurisdiction भी होना चाहिए to try your suit, right? So this is given under section 15. Now let's move to section 6, which talks about pecuniary jurisdiction. Section 6, pecuniary jurisdiction. Section 6, pecuniary jurisdiction. Section 6 क्या कहता है? Now let's read section 6. Section 6 reads as, save in so far as is otherwise expressly provided, nothing herein contained, that word nothing has been used, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits. Nothing herein contained, the word nothing has been used here. बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइसेक्ट करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको एक एक वर्ड पे एम्फसाइज करना है कि नथिंग का क्या मतलब है, हेयर इन कंटेंट का क्या मतलब है, एंड एवरीथिंग मैं बताऊंगा आपको. सेक्शन 6, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन. सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन ओवर सूट्स the amount or the value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limit if any of its ordinary jurisdiction. क्या बोल रहा है सेक्शन 6? Save in so far as is expressly provided. Save in so far as is expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or the value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits, if any of its ordinary jurisdiction. Now, pecuniary jurisdiction section 6, save in so far as is otherwise expressly provided. इसका क्या मतलब है? Save in so far as is otherwise expressly provided का मतलब है कि अगर किसी स्पेशल लॉ में एक्सप्रेसली ये प्रोवाइड किया गया है क्या कि पिक्यूनरी लिमिट्स अगर नहीं भी है तो फिर वो कोर्ट ट्राई कर सकता है. अगर ऐसा किसी स्पेशल लॉ में है तो उसको सेव किया गया है यहां पे. सेव इन सो फार, अगर आपका कोई मैटर है जिसमें कि वो स्पेशल लॉ अप्लाई हो रहा है और उस स्पेशल लॉ में एक्सप्रेसली ये मेंशन कर दिया गया है, एक्सप्रेसली कैटेगोरिकली इट हैज बीन रिटन दैट द पिक्यूनरी लिमिट्स आर, इट इज इमटेरियल इफ इट एक्सीड्स द पिक्यूनरी लिमिट, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पिक्यूनरी लिमिट्स एक्सीड कर जाती है, स्टिल इट हैज द ज्यूरिसडिक्शन. तो उसको सेव किया गया है यहां पे, राइट. तो ये एक तरीके से एक्सप्रेस बार वाला है कि अगर किसी स्पेशल लॉ में कोई अगर स्पेशल लॉ बना दिया है, कोई अलग से अगर लॉ बनाया है और उसमें अगर एक्सप्रेसली इस तरीके से लिख दिया गया तो उसको सेव किया गया है यहां पे, राइट. ये शुरू होता है सेक्शन यहां से. नाउ सेव इन सो फार एज इज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction. Nothing herein contained, herein means CPC. Nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction. CPC में जो भी लिखा हुआ है, nothing herein contained,
दैट डजंट मैटर। और सीपीसी को एक तरीके से यहां पे ये ओवरराइड कर रहा है सेक्शन। नथिंग हेयर इन कंटेंट मीन्स नथिंग कंटेंट इन सीपीसी shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or the value of the subject matter. The amount or the value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits of its ordinary jurisdiction. अगर आपके सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट या फिर वैल्यू पिक्यूनरी लिमिट्स को एक्सीड करता है कोर्ट की, तो उसके पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस मैटर को ट्राई करने का। आपका सब्जेक्ट मैटर, लेट्स सपोज आपने सूट इंस्टीट्यूट करा फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सब्जेक्ट मैटर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का अमाउंट या वैल्यू मान लेते हैं 12 लाख है, और जिस कोर्ट में आप उसको इंस्टीट्यूट कर रहे हो उस कोर्ट का पिक्यूनरी लिमिट 10 लाख है। इसका मतलब है कि यू कैन नॉट इंस्टीट्यूट दिस कोर्ट इन विच यू आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट दिस सूट इन विच द सब्जेक्ट मैटर द वैल्यू द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जिसमें कि दिस सब्जेक्ट मैटर जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका अमाउंट या वैल्यू एक्सीड कर रहा है किससे? पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ दैट कोर्ट। उस कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट्स 10 लाख की है और आपके सब्जेक्ट मैटर का जो अमाउंट या वैल्यू है वो 12 लाख है। सो इट एक्सीड्स, ये ज्यादा है फ्रॉम द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द कोर्ट इन विच यू आर गोइंग टू इंस्टीट्यूट द सूट। यही चीज सेक्शन 6 बोल रहा है। सेक्शन 6 पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, save insofar as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction. किसी भी कोर्ट को jurisdiction नहीं देता है सीपीसी में जो भी लिखा हुआ है। nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction किस चीज में? overshoots the amount or the value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its ordinary jurisdiction. किसी भी ऐसे कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है उस मैटर को ट्राई करने का जो कि उसकी पिक्यूनरी लिमिट्स, जिसका सब्जेक्ट मैटर का अमाउंट या फिर वैल्यू उसकी पिक्यूनरी लिमिट से ज्यादा है। लेट्स टेक एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन। लेट्स सपोज आई एम अ सिविल जज, मैं सिविल जज हूं, एंड द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ माई कोर्ट इज ₹5 लाख। मान लेते हैं कि मेरे कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट्स, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन 5 लाख है। Somebody violated your civil right, you got the cause of action and you come to my court. The subject matter, जो सब्जेक्ट मैटर है आपके सूट का, उसका अमाउंट या वैल्यू 8 लाख है, and the pecuniary jurisdiction or the pecuniary limit of my court is 5 lakh. Now the amount or the value of the subject matter of your suit is 8 lakh. It means it exceeds the pecuniary limits of the pecuniary limits of my court, pecuniary jurisdiction of my court. मेरे कोर्ट का जो pecuniary jurisdiction है, जो pecuniary limit है, उसको exceed कर रहा है, उससे ज्यादा है आपके subject matter का amount या value. Now there are two terms used here, amount और वैल्यू। अमाउंट या फिर वैल्यू किसका? ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या कर रहा है? exceeds the pecuniary limit. Pecuniary limit से ज्यादा है। अगर ऐसा है then that particular court will have no jurisdiction to try your suit, to try your matter, right? So section 6 में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, that amount or the value of subject matter exceeds, second is exceeds the pecuniary limits if any.
if any, because it is decided by the respective state governments of its ordinary jurisdiction, right? So if you have a subject matter and the amount or the value of this subject matter exceeds, ज्यादा है किस चीज से, exceeds the pecuniary limits or the pecuniary jurisdiction of a court, जिस कोर्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट किया है या करना चाहते हैं, उस कोर्ट की जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, जो पिक्यूनरी लिमिट है, उससे आपके सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है उसका अमाउंट या वैल्यू एक्सीड कर रहा है, ज्यादा है। इसका मतलब उस कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है टू ट्राई योर मैटर। उस कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो आपके सूट को ट्राई कर सके और डिसाइड कर सके, राइट? So this is what the meaning of pecuniary jurisdiction and this is what section 6 reads about. ये section 6 में लिखा हुआ है pecuniary section 6 does not define the pecuniary jurisdiction. section 6 pecuniary jurisdiction को define नहीं करता है कि pecuniary jurisdiction की क्या definition है. It only says कि अगर pecuniary limits को exceed करता है आपके subject matter, आपके सूट में जो सब्जेक्ट मैटर है उसका अमाउंट या वैल्यू, तो उस केस में कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है आपके सूट को, आपके मैटर को ट्राई करने का और डिसाइड करने का, राइट? नाउ लेट्स रीड दिस सेक्शन फ्रॉम द बेयर एक्ट्स एज वेल, और कुछ नोट्स देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन. ओके, नाउ लेट्स रीड द नोट्स and read the sections from the Bayer Act. Pecuniary jurisdiction section 6 हम कर चुके हैं. Hierarchy of civil courts means subordination of courts की यहाँ पे बात हो रही है. Section 3 हम कर चुके हैं. Concept of original jurisdiction and subject matter jurisdiction ये रह गए हैं, ये भी हम अभी देख लेते हैं. Pecuniary jurisdiction section 6. Pecuniary jurisdiction save in so far as is otherwise expressly provided means इफ इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, अगर ये एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है, एक्सप्रेसली कहीं पे मेंशन है किसी स्पेशल लॉ में, तो उसको सेव कर लिया गया है. तो उस केस में अगर ये कहीं किसी स्पेशल लॉ में एक्सप्रेसली ये लिख दिया गया है, कैटेगोरिकली इफ इट हैज बीन मेंशन इन अ स्पेशल लॉ दैट इवन इफ द पिक्यूनरी लिमिट्स एक्सीड्स द कोर्ट विल हैव द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द मैटर, तो वो एक अलग चीज है. लेकिन ये सेक्शन शुरू होता है यहां से. इसको सेव कर लिया गया है कि अगर किसी स्पेशल लॉ में एक्सप्रेसली ये प्रोवाइड किया गया है कि पिक्यूनरी लिमिट्स एक्सीड होती है तो भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, तो उसको यहां पे सेव कर लिया गया है. लेकिन अगर नहीं है सो उस केस में ये है, राइट? दिस सेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. नथिंग हेयरिन कंटेन्ड शैल ऑपरेट टू गिव एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन over the suits the amount or the value of the subject matter of which exceeds the pecuniary limits if any of its ordinary jurisdiction. जो सूट आपने इंस्टीट्यूट किया है या फिर जो सूट आप इंस्टीट्यूट करना चाहते हो, उस सूट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है अगर उसका अमाउंट या उसकी वैल्यू एक्सीड करती है, मतलब अगर ज्यादा है किससे, पिक्यूनरी लिमिट्स, उस कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट्स, उस कोर्ट की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन से अगर ज्यादा है, then that would mean that that particular court does not have a jurisdiction, does not have a pecuniary jurisdiction to try and decide your suit, to try and decide your matter. तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर कोर्ट के पास पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है आपके सूट को ट्राई करने की और डिसाइड करने की. अगर आपके सूट के सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू या फिर अमाउंट ज्यादा है उस कोर्ट के पिक्यूनरी लिमिट से, तो उसके पास जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ this section 6. Now section 3, subordination of courts. For the purposes of this code means CPC.
द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट. मैंने बताया था आपको द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट. And every civil court of a grade inferior to that of a district court and every court of small causes is subordinate to that of the high court and the district court. And civil court is subordinate to the high court and the district court, and at the bottom there is court of small causes. सबसे नीचे court of small causes है. This we have discussed. Now after that, what will be the court in which the suit is to be instituted? The court in which suits to be instituted, एवरी सूट सेक्शन 15 बताता है कि किस कोर्ट में आपको सूट को इंस्टीट्यूट करना है. एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड. इट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन बिकॉज शैल हैज बीन यूज्ड हियर. शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट. लोवेस्ट भी होना चाहिए, सबसे नीचे का कोर्ट, सबसे छोटा कोर्ट भी होना चाहिए, एंड दैट मस्ट बी कॉम्पिटेंट एज वेल. कॉम्पिटेंट का मतलब है कि उसके पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए टू ट्राई एंड डिसाइड योर सूट, टू ट्राई एंड डिसाइड योर मैटर. सो इट्स अ लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट, लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट. तो आप अपने सूट को कहां पे इंस्टीट्यूट करोगे? ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाओगे, डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में चले जाओगे, नहीं. लोवेस्ट कोर्ट में जाना है. डायरेक्ट भी जा सकते हो अगर उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आपके मैटर का, जो भी आपका मैटर सब्जेक्ट मैटर है उसका अगर ओरिजिनल, अभी हम देखेंगे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है, बट एज अ जनरल रूल ये है कि आपको लोवेस्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपने सूट को इंस्टीट्यूट करना है. लोवेस्ट मतलब जो सबसे नीचे का कोर्ट होगा, और जो कॉम्पिटेंट होगा मतलब उसके पास जुरिस्डिक्शन भी होना चाहिए आपके मैटर को, आपके सूट को ट्राई करने का और डिसाइड करने का. नाउ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कोर्ट मींस द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब क्या है? ट्रायल कोर्ट. ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मींस the power to hear the case from the beginning. Power to hear the case from the beginning. Power to hear the case from the beginning. जब पावर, जिस कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी केस को फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से सुन सकता है, तो उसको बोलते हैं दैट दिस कोर्ट हैज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. आप डायरेक्ट उस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करते हो. कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ट्रायल कोर्ट के पास पावर होती है टू हियर योर सूट फ्रॉम, टू हियर योर केस फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट. इन सम ऑफ द केसेस ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी होता है. नाउ वी हैव टू सी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है, अब किसके पास होता है, किसके पास नहीं होता, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट. सो द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मींस पावर टू हियर द केस फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरुआत से केस को सुनने की जिस कोर्ट के पास पावर है, इसका मतलब उसके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है. आप डायरेक्टली उस कोर्ट में जा सकते हो जिस कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, बाईपास करके बाकी कोर्ट्स को, वहां पे आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो. इट्स अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब इट्स अ ट्रायल कोर्ट, राइट. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन और द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस और द एपलेट जुरिस्डिक्शन और द रिविजनल जुरिस्डिक्शन. नाउ एपलेट जुरिस्डिक्शन की भी बात हो रही है यहाँ पे, और रिविजनल जुरिस्डिक्शन की भी बात हो रही है. एपलेट मीन्स व्हेन यू फाइल एन अपील. जब आप अपील में जाते हो तो दैट मीन्स जिस कोर्ट में आप अपील फाइल करते हो उसके पास एपलेट जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, right. Revisional jurisdiction. Now in civil matters under section 115 the revisional jurisdiction is only with the high court. section 115 CPC अगर आप पढ़ोगे, so the revisional jurisdiction has been conferred to the high court only in civil matters. Civil matters में सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास रिविजनल जुरिस्डिक्शन होता है. आपने अगर रिवीजन फाइल करना है then only the high court that is given under section 115 of the Code of Civil Procedure 1908 has the revisional jurisdiction in civil matters, whereas in cases of criminal matters में high court के साथ साथ sessions judge के पास भी revisional jurisdiction होता है. Now high court as well as the
as well as the sessions judge has the revisional jurisdiction in cases of criminal matters. criminal matters में हाई कोर्ट के पास भी और सेशंस जज के पास भी revisional jurisdiction होता है, but in cases of civil matters it is there with the high court only, section 115, right? तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, the concept of original jurisdiction or the court of first instance. court of first instance means the original jurisdiction. original jurisdiction का मतलब है court of first instance, जहां पे आप मीन्स ट्रायल कोर्ट, जहां पे आप जिस कोर्ट के पास पावर है टू हियर द केस फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत से केस को सुनने की पावर, ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है. The concept of original jurisdiction or the court of first instance or the appellate jurisdiction or the revisional jurisdiction are subjective concepts, and it will all depend upon the original value of the suit and also the purpose for which the party moves the court. ये depend कर, this is all these, whether it is the original jurisdiction or the appellate jurisdiction or the revisional jurisdiction, these all are subjective concepts. ये subjective concepts हैं. And it will all depend upon the original value of the suit and also the purpose for which the party moves the court. किस पर्पस के साथ पार्टी कोर्ट में आई है इस पे भी डिपेंड करेगा, और ओरिजिनल वैल्यू क्या है सूट की उस पे भी डिपेंड करेगा. ओनली द हाई कोर्ट हैज रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन इन सिविल मैटर्स. मैं बता चुका हूं, दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी, सेक्शन 115 में दिया हुआ है. नाउ इन क्रिमिनल मैटर्स द सेशंस जज एंड द हाई कोर्ट बोथ हैव द रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन, whereas in civil matters under section 115 of Code of Civil Procedure 1908 provides the revisional jurisdiction to the High Court only. Revisional jurisdiction अगर आपने रिवीजन फाइल करना है सिविल मैटर्स में तो ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास है, सेक्शन 115. और अगर क्रिमिनल मैटर्स की मैं बात करूं तो ये हाई कोर्ट के साथ साथ सेशंस जजेस के भी पास है, सेशंस जज के पास भी है. Every district has civil judge senior division who marks, that is who allots the civil matters to the civil judge junior division. जो सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है वो अलॉट करता है या फिर मार्क करता है केसेस को, किसको, सिविल जज जूनियर डिवीजन को. जूनियर डिवीजन सिविल जज जूनियर डिवीजन को अलॉट कौन करता है मैटर्स केसेस को, सिविल जज सीनियर डिवीजन, बिकॉज वो सिविल जज जूनियर डिवीजन सबऑर्डिनेट होता है सिविल जज सीनियर डिवीजन के. नाउ subject matter. Now you must have understood original jurisdiction. Original jurisdiction means a court of first instance. Court of first instance का मतलब है ट्रायल कोर्ट, जहां पे ट्रायल होता है, जिस कोर्ट में ट्रायल कर सकते हो. द कोर्ट विच हैज द पावर टू हियर द केस फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस कोर्ट के पास पावर है कि वो बिल्कुल शुरुआत से आपके केस को सुन सकता है, दैट इज अ कोर्ट ऑफ that means the original jurisdiction court. That court has the original jurisdiction. Original jurisdiction का मतलब है the power to hear the case from the beginning. बिल्कुल शुरुआत से केस को सुनने की जो पावर होती है उसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बोला जाता है. एंड इट इज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब है कि जहां पे आपने पहली बार सूट को इंस्टीट्यूट या केस को इंस्टीट्यूट किया है उसको कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बोला जाता है. ट्रायल कोर्ट की यहां पे बात होती है. ट्रायल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे ट्रायल चलता है जहां पे बिल्कुल शुरुआत से केस को सुना जाता है. जनरली द ट्रायल इज अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. बाद में देखेंगे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस किस के पास होता है, राइट. सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर आप सबको पता है कि क्या होता है. सब्जेक्ट मैटर in CPC there is no specific provision for the subject matter jurisdiction, but in certain matters there are special laws which create special courts to entertain such matters. These laws provide special jurisdiction clause or the finality clause which provides exclusive jurisdiction to these courts. Exclusive jurisdiction, अगर आपको याद होगा एक्सप्रेस बार और इम्प्लाइड बार अंडर सेक्शन 9 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. उसमें क्या था? उसमें यही था कि कोई स्पेशल लॉ है और इस स्पेशल लॉ में कोई स्पेशल कोर्ट या स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया है और बोल दिया है कि रिलेटेड टू द मैटर्स पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ, दिस स्पेशल लॉ विल बी ट्राइड एंड डिसाइड बाय ओनली दिस कोर्ट और ओनली दिस ट्रिब्यूनल. कि इस लॉ से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे, जितने भी केसेस होंगे, जितने भी सूट्स होंगे,
उनको ट्राई करने का और डिसाइड करने का ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ इस स्पेशल कोर्ट के या फिर सिर्फ इस स्पेशल ट्रिब्यूनल के पास होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन क्लोज, जहां पे ये स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया जाता है लॉ में कि ओनली दिस ट्रिब्यूनल और ओनली दिस कोर्ट विल हैव द ज्यूरिसडिक्शन to try and decide this matter. This is called exclusive jurisdiction. Exclusive jurisdiction का मतलब है in exclusion of the other courts. दूसरे कोर्ट्स को एक्सक्लूड करके सिर्फ इस कोर्ट के पास या इस ट्रिब्यूनल के पास jurisdiction है इस मैटर को या इससे इस लॉ से रिलेटेड केसेस को ट्राई करने का और डिसाइड करने का। एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का यही मतलब है इन एक्सक्लूजन ऑफ द अदर कोर्ट्स, बाकी कोर्ट्स को एक्सक्लूड करके उनको हटा के सिर्फ इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, राइट। इन सीपीसी देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन। सीपीसी में सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है for the subject matter jurisdiction, but in certain matters there are special laws which create special courts or special courts or tribunals. स्पेशल कोर्ट और ट्राइब्यूनल, कुछ स्पेशल लॉज हो सकते हैं जिसमें कि स्पेशल कोर्ट या स्पेशल ट्राइब्यूनल बना दिए गए हैं एंड एंटरटेन सच मैटर्स टू एंटरटेन द मैटर्स ऑफ दैट पर्टेनिंग टू दैट पर्टिकुलर स्पेशल लॉ, के उस स्पेशल लॉ के जो मैटर्स होंगे उनको सिर्फ ये स्पेशल कोर्ट या ये ट्रिब्यूनल ही एंटरटेन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। उसको बोलेंगे स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन क्लोज या फाइनैलिटी क्लोज, राइट। उसको फाइनैलिटी क्लोज जो वो मेंशन किया हुआ है, जो वो एक्सप्रेसली लिखा हुआ है या इम्प्लाइडली लिखा हुआ उसको स्पेशल ज्यूरिसडिक्शन क्लोज या फाइनैलिटी क्लोज बोलेंगे। एंड दिस इज द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन टू दीज कोर्ट्स। ये जो कोर्ट्स होंगे, जो स्पेशल कोर्ट्स होंगे या फिर ट्रिब्यूनल होंगे, इसका ये कहा जाएगा that these courts or these tribunals have the exclusive jurisdiction. Exclusive jurisdiction का मतलब है in exclusion of the other courts. बाकी कोर्ट्स को एक्सक्लूड करके सिर्फ इन कोर्ट्स के पास ही jurisdiction है, right? Now, a general court or the ordinary court has jurisdiction upon all matters, but where there is a special court for special subject matter, then a general court or the ordinary court does not have the jurisdiction upon that special matter. As a general rule, all civil matters can be tried and decided by all civil courts, right? That is given under section 9, हमने पढ़ा है last class में, right? So जो ordinary court या फिर general court की यहाँ पे बात हो रही है, civil courts के बारे में बात कर रहे हैं, has jurisdiction upon all matters, सभी matters के लिए को ट्राई करने का और डिसाइड करने का jurisdiction सभी कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स के पास है। सेक्शन 9 says so. Ubi just ibi remedium, every person, every individual has an inherent right to institute a civil suit or a suit of civil nature, and every court, every civil court has the inherent jurisdiction to try jurisdiction upon all civil suits and the suits of civil nature. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। But where there is a special court or this for a special subject matter, अगर कोई स्पेशल कोर्ट या स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया है किसी सब्जेक्ट मैटर के लिए, तो इसका मतलब है कि दैट स्पेशल कोर्ट और द ट्रिब्यूनल हैज द एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन इन एक्सक्लूजन ऑफ द अदर कोर्ट्स। सिर्फ वो स्पेशल कोर्ट या स्पेशल ट्रिब्यूनल ही उस मैटर को ट्राई करने की पावर या अथॉरिटी रखता है। ओनली दैट स्पेशल कोर्ट और द ट्रिब्यूनल हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई दैट सब्जेक्ट मैटर एंड डिसाइड दैट सब्जेक्ट मैटर। नाउ, to find out the subject matter jurisdiction, one has to examine whether the particular subject matter has been assigned or reserved exclusively for a special court or not. ये हमें examine करना पड़ेगा. We'll have to examine excuse me, we'll have to examine whether a particular subject matter has been assigned or reserved exclusively for a special court or not. किसी स्पेशल, अगर मैंने एक मैटर आई एम विलिंग टू इंस्टीट्यूट अ सूट, देन आई विल हैव टू सी वेदर दिस सब्जेक्ट मैटर ऑफ माय पर्टिकुलर सूट हैज बीन असाइंड और रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर सम स्पेशल कोर्ट और ट्रिब्यूनल और नॉट। मुझे देखना पड़ेगा कि इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट या स्पेशल ट्रिब्यूनल तो नहीं है जो सब्जेक्ट मैटर है मेरे सूट का। अगर है, मान लीजिए प्रोबेट का मैटर है मेरा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि प्रोबेट कोर्ट्स होते हैं, मैं वहां पे जाऊंगा। रेंट का मैटर है, रेंट ट्रिब्यूनल्स होते हैं, मैं ऐसा नहीं मैं किसी भी सिविल कोर्ट में जाके फाइल कर दूंगा।
So to find out the subject matter jurisdiction, one has to examine whether that particular subject matter has been assigned or reserved exclusively for special court or not. If yes, अगर ऐसा है, then the ordinary court, ordinary means the बाकी के जो civil courts हैं, will not have jurisdiction upon that subject matter. The express or the implied bar in other laws therefore becomes important. If the court did not have the subject matter jurisdiction, अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट के पास, एक्सक्यूज मी, if the court did not have the subject matter jurisdiction and still it tries the suit, it will be a case of inherent lack of jurisdiction. It will be a case of inherent lack of jurisdiction. Therefore, such decree will be void. It is very, very, very important कि अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी कोर्ट के पास and still that court tries that matter and passes the decree, so that decree will be void because it will be a case of inherent lack of jurisdiction. Subject matter jurisdiction अगर नहीं है और फिर भी let's suppose कि मैंने इस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, मान लीजिए मैं ये फैमिली मैटर था, मेरा डिवोर्स का मैटर था और मैंने किसी जनरल सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट कर दिया एंड दिस कोर्ट हैज डिसाइडेड, दिस कोर्ट हैज पास्ड द डिक्री, इस कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, सो दिस डिक्री विल बी अ वॉइड डिक्री, ये एक वॉइड डिक्री होगी बिकॉज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन अगर नहीं है एंड स्टिल द कोर्ट हैज ट्राइज द मैटर एंड डिसाइडेड the matter and passed the decree, that decree will be a void decree because it will be a case of inherent lack of jurisdiction. ये inherent lack of jurisdiction होगा, you have to use this phrase inherent lack of jurisdiction. अगर मेंस में क्वेश्चन आता है, बहुत चांसेस हैं इसके आने के, तो आपको लिखना पड़ेगा if the court did not have a subject matter jurisdiction and still if it tries the matter and pass the decree will be void because it would be a case of inherent lack of jurisdiction. Inherent lack of jurisdiction का मैटर है, अगर सब्जेक्ट मैटर नहीं है तो कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता है, डिक्री पास नहीं कर सकता, अगर कर दी तो void डिक्री होगी, that will be a void डिक्री, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, that is a no decree. However, if the court did not have the pecuniary jurisdiction or the territorial jurisdiction and still it tries the suit, then the decree will not be void per se because the purpose of such jurisdiction division is for the administrative convenience. बहुत important है कि अगर pecuniary jurisdiction नहीं था कोर्ट के पास या फिर territorial jurisdiction नहीं था and still the court tries the matter, ये यहाँ पे जो trial होगा, that trial must be on merits. अगर merits पे try किया है मैटर को, if the court has tried the matter or tried the suit, the trial was conducted on merits, अगर merits पे trial हुआ है, then the decree will not be void per se. Per se means on its own. तो वो void decree नहीं होगी if it was a case in which the court did not have the territorial jurisdiction or the pecuniary jurisdiction. Because the purpose of such jurisdiction division is for the administrative convenience, क्योंकि जो pecuniary jurisdiction और territorial jurisdiction होता है उसका पर्पस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम करेंगे ऑब्जेक्शंस टू जुरिस्डिक्शन सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी एंड 21A कैपिटल. यहाँ पे मैंने क्या बोला, अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है एंड द कोर्ट ट्राइज द मैटर और उसने ट्राई कर दिया है, देन इट वुड बी अ केस ऑफ इनहेरेंट lack of jurisdiction and the decree will be a void decree, और जो डिक्री होगी वो void डिक्री होगी. लेकिन अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था या फिर pecuniary jurisdiction नहीं था and still the court tries the matter and passes the decree, that decree tries the matter and passes the decree, that decree will not be void per se, that decree will not be void per se. वो per se void नहीं होगी, on its own void नहीं होगी, because जो territorial jurisdiction और pecuniary jurisdiction होता है
उसको कोर्ट the intention of the legislature is this, that the purpose of the territorial jurisdiction and the pecuniary jurisdiction is for the administrative convenience के लिए वो होता है. and there is a now ये हम जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी करेंगे. ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और फिर भी मैटर को ट्राई कर दिया तो इट विल बी अ केस ऑफ इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, डिक्री वॉइड है. लेकिन अगर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं था या फिर ट्रायल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं था और ट्रायल मेरिट्स पे हुआ है, ये बहुत जरूरी है मेरिट्स पे होना. नाउ प्लीज माइंड माई वर्ड्स, द ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड ऑन द मेरिट्स. मेरिट्स पे ट्रायल होना चाहिए. द सूट मस्ट हैव बीन डिसाइडेड ऑन मेरिट्स, द डिक्री मस्ट हैव बीन पास्ड ऑन मेरिट्स एंड द जजमेंट मस्ट हैव बीन प्रोनाउंस्ड ऑन मेरिट्स. मेरिट्स पे पास होनी चाहिए डिक्री, ट्रायल मेरिट्स पे हुआ होना चाहिए. अगर ऐसा है देन द डिक्री विल नॉट बी अ वॉइड डिक्री, दैट विल नॉट बी अ वॉइड decree per se, right? There is a landmark judgment of Honorable Supreme Court on this section on objections to the jurisdiction, section 21 objections to jurisdiction पे landmark judgment है Supreme Court की, that is Kiran Singh versus Chaman Paswan 1954. It's a 4 judges bench judgment. Honorable Mr. Justice, the then Honorable Mr. Justice Venkatarama delivered the judgment. This is a judgment. Kiran Singh versus Chaman Paswan. It's a 1954 Supreme Court judgment and it's a 4 judges bench judgment. And the Honorable Mr. Justice, the then Honorable Mr. Justice Venkatarama delivered the judgment. Honorable Justice, the then Honorable Mr. Justice Venkatarama delivered the judgment. अभी मैं चाहता हूँ, even though we'll discuss this thing, जो pecuniary jurisdiction अगर नहीं है या फिर territorial jurisdiction नहीं है and still the court passes the decree, तो ये जो चीज़ है डेफिनेटली ये केस और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में जब हम सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन 21 ए कैपिटल, ये सारे ये टॉपिक करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, इस जजमेंट को भी पढ़ेंगे. बट बिकॉज इट हैज़ कम हियर तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या है, ताकि जब हम ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन करेंगे तो भी आपको एक तरीके से याद रहेगा एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू ऑफ सेक्शन 21. नाउ लेट्स डिस्कस, लेट मी टेल यू कि किस तरीके से ये होता है, राइट? ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, तो एक बार इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. If the court did not have the subject matter jurisdiction and still it tries the suit, it will be a case of inherent lack of jurisdiction. Therefore, such decree will be void. अगर subject matter jurisdiction नहीं है, फिर भी अगर try किया है, तो decree void होगी and it will be a case of inherent lack of jurisdiction. However, if the court did not have the pecuniary jurisdiction or the territorial jurisdiction and still it tries the suit, then the decree will not be void per se. और अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं था और फिर भी अगर कोर्ट ने मैटर को ट्राई किया है तो क्या वो डिक्री वॉइड होगी या नहीं? तो यहां पे लिखा हुआ है द डिक्री विल नॉट बी वॉइड पर से. यस, दैट डिक्री विल नॉट बी वॉइड पर से if the trial was on merits, if it was decided, it was passed on merits. अगर ये जो केस है ये merits पे decide हुआ है तो that will not be a void decree per se, because the purpose of this of such jurisdiction division is for the administrative convenience. ये हम discuss कर चुके हैं. यहाँ पे there is a landmark judgment मैं बता चुका हूँ आपको, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान 1954. बट ये जो क्वेश्चन है, this is a question of section 21 of CPC, objections to jurisdiction. Objections to jurisdiction का क्वेश्चन है. हम सेक्शन 21 में सेक्शन 21 एंड 21 ए कैपिटल जब करेंगे मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊंगा. बट ये अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है. आई थिंक एक बार मैं आपको बता देता हूँ. ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है. नाउ इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्लास, इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू दैट इफ द प्लेंटिफ हैज इंस्टीट्यूटेड द सूट, then the defendant may raise the objection, the preliminary objections regarding the lack of jurisdiction.
प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया तो डिफेंडेंट प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है दैट regarding the lack of jurisdiction, that this court did not have a jurisdiction to try this particular matter, to try this suit, कि कोर्ट के पास, इस कोर्ट के पास jurisdiction नहीं है इस केस को, इस सूट को, इस मैटर को ट्राई करने का, राइट। प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया तो डिफेंडेंट ने क्या किया, डिफेंडेंट ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस regarding the lack of jurisdiction raise कर दिए, raised. The defendant raised the lack of jurisdiction, raised the preliminary objections regarding the lack of jurisdiction कि इस कोर्ट के पास jurisdiction नहीं है to try and decide this matter. तो क्या होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया that the court will frame the issues, the preliminary issues frame करेगा, उसके बाद उस पे hearing होगी और उसके बाद the court will decide whether this court has the jurisdiction or not. If the court comes to the conclusion that it does not have the jurisdiction, that under Order 7, Rule 10, the court may return the plaint, and if it has come to the conclusion that this court has the jurisdiction, then the trial on merit will be conducted. तो ट्रायल चलेगा मेरिट्स पे, राइट। सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास। प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया, डिफेंडेंट ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है। उसके ऊपर कोर्ट ने प्रिलिमिनरी इश्यूज फ्रेम करे, उस पर हेयरिंग हुई और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो कोर्ट रिटर्न कर देगा प्लेंट को अंडर ऑर्डर 7 रूल 10, और अगर है तो ट्रायल चलेगा मेरिट्स पे। ये तो एक चीज है, एक सिचुएशन है। एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और डिक्री पास हो जाती है तो वो डिक्री वॉइड नहीं होगी, पर से वॉइड नहीं है। तो एक इसी चीज में एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं। सिचुएशन इज प्लेंटिफ हैज इंस्टीट्यूटेड द सूट, प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट किया एंड डिफेंडेंट फाइल्ड द रिटर्न स्टेटमेंट, डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी। प्लेंटिफ हैज इंस्टीट्यूटेड द सूट बाय प्रेजेंटिंग अ प्लेंट प्रेजेंट करके प्लेंटिफ ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, डिफेंडेंट ने विद इन द पीरियड ऑफ 30 days एंड मैक्सिमम विद इन 90 days रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी। ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद ट्रायल ऑन मेरिट्स, ट्रायल ऑन मेरिट्स पे ट्रायल हुआ एंड द ऑनरेबल कोर्ट pronounced the judgment and passed the decree. ऑनरेबल कोर्ट ने passed the decree. The honorable court passed the decree on merits. कोर्ट ने डिक्री पास कर दी मेरिट्स पे। अब क्या होता है, नाउ द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट था, ही हैज फाइल्ड एन अपील, उसने अपील फाइल कर दी या फिर वो रिवीजन में चला गया। The defendant has filed the appeal or he has gone in the revision, saying that the trial court did not have the territorial jurisdiction or the pecuniary jurisdiction. उसकी contentions हैं कि trial court did not have pecuniary jurisdiction or territorial jurisdiction and still it passed the decree. ट्रायल कोर्ट के पास पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं था या फिर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं था या फिर ये दोनों नहीं थे और फिर भी ट्रायल कोर्ट ने डिक्री पास कर दी। सो दिस डिक्री इज अ वॉइड डिक्री। डिफेंडेंट ये बोल रहा है अपील में जाके या फिर रिवीजन में जाके। नाउ सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन क्या कहता है? ऑब्जेक्शन टू ज्यूरिसडिक्शन, subsection 1 and subsection 2. Now subsection 1 of section 21 reads as that no objection as to the place of suing, no objection
as to the place of suing. प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब क्या है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात हो रही है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. एंड सबसेक्शन 2, हम सिर्फ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 की बात करेंगे. दैट इज व्हाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस. एंड सबसेक्शन 2 सेज नो ऑब्जेक्शन एज टू द competence of a court with reference to the pecuniary limits. No objection as to the competence of court with reference to the pecuniary limits. मतलब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात हो रही है. अब दोनों सबसेक्शंस में सेम चीज लिखी हुई है. सबसेक्शन 1 कहता है नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. और सबसेक्शन 2 कहता है नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिक्यूनरी लिमिट्स, मतलब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. इसको आगे पढ़ते हैं. नाउ इट रीड्स एज सेक्शन 21 नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग and under subsection 2 no objection as to the competence of court with reference to the pecuniary limits shall be allowed by any appellate court or the revisional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. अगर ये जो ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन जो कि अपीलेट कोर्ट में या फिर रिविजनल कोर्ट में इसने पार्टी ने रेज किया है, इस ऑब्जेक्शन को नहीं अलाउ किया जाएगा अगर ये ऑब्जेक्शन वाज नॉट टेकन एट द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी. अगर ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में मतलब ट्रायल कोर्ट की बात हो रही है, अगर ट्रायल कोर्ट में इसने ये ऑब्जेक्शन नहीं लिया था एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जब उसके पास जितनी अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी थी वहां पे अगर इसने नहीं लिया था. फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन कहती है इन दीज टू सबसेक्शंस ओनली एंड इन ऑल केसेस वेयर द इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट. और सभी उन केसेस में जहां पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हुआ है, अगर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हुए हैं आपके इस मैटर में जिसके अगेंस्ट आप गए हो, देन एट और बिफोर सच सेटलमेंट. एट और बिफोर सच सेटलमेंट का मतलब है उस सेटलमेंट पर या फिर उस सेटलमेंट से पहले आपको ये ऑब्जेक्शन रेज करना था, और अगर आपने नहीं किया है. फर्दर इट रीड्स एज एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. और अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुआ है तो ये जो ऑब्जेक्शन है ये अलाउ नहीं किया जाएगा by any appellate court or the revisional court. तो अगर आपने ट्रायल कोर्ट में at the earliest possible opportunity ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कौन सा ऑब्जेक्शन? रिगार्डिंग द लैक ऑफ jurisdiction, that the trial court does not have the territorial jurisdiction or the pecuniary jurisdiction, और आप सीधे और आपने ट्रायल मेरिट्स पे हुआ और ट्रायल चला और उसके बाद मेरिट्स पे डिक्री पास हो गई. अब आप अपील में जाके या रिवीजन में जाके बोल रहे हो कि ट्रायल कोर्ट के पास तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं था, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ही नहीं था. देन दैट ऑब्जेक्शन शैल नॉट बी अलाउड बाय एनी अपीलेट कोर्ट और द रिविजनल कोर्ट. इस ऑब्जेक्शन को कोई भी अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट अलाउ नहीं करेगा अगर आपने if this objection was not taken in the court of first instance at earliest possible opportunity. अगर आपने ये ऑब्जेक्शन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस नहीं उठाया था, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मतलब ट्रायल कोर्ट में, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, एंड इन ऑल केसेस वेयर द इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट. और अगर ये केस जो आप जिसके अगेंस्ट गए हो इसमें सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हुए थे तो आपको एट और बिफोर सच सेटलमेंट ये इश्यू आपको उठाना था. और अगर आपने नहीं उठाया, इफ यू डिड नॉट रेज दिस ऑब्जेक्शन ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, इफ इट वाज अ केस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एट और बिफोर सच सेटलमेंट, देन any appellate court or the revisional court will not allow that objection. And very important thing,
very very important thing. And unless there has been a consequent failure of justice, failure of justice भी होना चाहिए. तीन ऑब्जेक्शन, there are three conditions given. First is that it says that, now let me just write it down, not like this, let me just write it down in this way. इसको इस तरीके से लिखते हैं that no objection, पूरा ही लिख देते हैं, no objection as to place of suing. प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और या फिर एंड एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट with reference to the pecuniary limit, pecuniary limits, no objection shall be allowed by any appellate or revisional court. No objection shall be allowed by any appellate or the revisional court. किसी भी appellate कोर्ट के द्वारा अगर आप अपील में गए हो या फिर किसी भी रिविजनल कोर्ट के द्वारा अगर आप रिवीजन में गए हो, ये ऑब्जेक्शन shall not be allowed, ये ऑब्जेक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा. Unless, क्या कंडीशन है? Unless अब ये कंडीशंस मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं. देयर आर थ्री कंडीशंस. अनलेस इट वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, unless it was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity, unless it was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. court of first instance मतलब ट्रायल कोर्ट. अगर आपने उसको ट्रायल कोर्ट में नहीं रेज किया था, इट वॉज नॉट टेकन इन द ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, और कब? एट द अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी. प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन आपको रेज करनी चाहिए थे रिगार्डिंग द लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन. एंड सेकेंड है एंड if it is a case of settlement of issues, in all cases of settlement of issues at or before such settlement, तो आपको ये ऑब्जेक्शन कब रेज करना चाहिए था? इफ इट वॉज अ केस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, अगर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हुए थे आपके ट्रायल कोर्ट में, तो आपको एट और बिफोर सच सेटलमेंट, उस सेटलमेंट से पहले या सेटलमेंट पर एट, ये आपको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड, एंड unless there has been a consequent failure of justice, unless there has been a consequent failure of justice, and unless there has been a consequent failure of justice, failure of justice भी होना चाहिए. अगर failure of justice है तो भी आपके ऑब्जेक्शन को नहीं अलाउ किया जाएगा. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इन दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, हरियाणा में, समटाइम्स राजस्थान में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. बहुत टिपिकल क्वेश्चन है मेंस का
कि अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन नहीं था या फिर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं था कोर्ट के पास, और फिर भी उसने, नाउ द कंडीशन, दीज आर द कंडीशंस गिवन अंडर सेक्शन 21 ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, तो उसने फिर भी ट्रायल कर दिया, एंड दिस ट्रायल वाज ऑन मेरिट्स, decided passed the decree, pronounced the judgment, and it was all on merits. और ये सारा का सारा merits पे किया था. So आप पहले क्या करोगे? You will refer the judgment, this landmark judgment, Kiran Singh versus Chaman Paswan 1954, 4 judges bench judgment. The then Honorable Mr. Justice Venkatarama delivered the judgment, and you will. अब इसमें हुआ क्या था किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान में? इट वॉज हेल्ड दैट इफ द डिक्री हैज बीन पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट ऑन मेरिट्स, देन इट शुड नॉट बी रिवर्स्ड प्योरली ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स. द लेजिस्लेचर treats the pecuniary jurisdiction, the objections to the pecuniary jurisdiction and the territorial jurisdiction as technical matters, as technical. जो लेजिस्लेचर की इंटेंशन है, अगर आप सेक्शन 21 को पढ़ोगे, तो वो जो ऑब्जेक्शन टू पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन या फिर ऑब्जेक्शन टू टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, उसको एक तरीके से टेक्निकल ऑब्जेक्शंस, टेक्निकल ग्राउंड कंसिडर करता है, राइट. एंड इफ द ट्रायल एंड इफ द डिक्री वाज पास्ड ऑन मेरिट्स, द ट्रायल वाज कंडक्टेड ऑन मेरिट्स, अगर मेरिट्स पे डिक्री पास हुई है, ट्रायल मेरिट्स पे हुआ है, और अगर आपने तो इन दैट केस दैट डिक्री विल नॉट बी वॉइड पर से, वो डिक्री वॉइड नहीं होगी. सेक्शन 21 को अगर आप पढ़ोगे तो सेक्शन 21 कह रहा है नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग. कोई भी ऑब्जेक्शन जो कि प्लेस ऑफ सुइंग से रिलेटेड है, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, एंड दिस इज गिवन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 21. सबसेक्शन 2 कहता है नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू द पिक्यूनरी लिमिट्स, मतलब पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा है. shall be allowed by any appellate or the revisional court, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा किसी भी appellate कोर्ट के द्वारा या रिविजनल कोर्ट के द्वारा, unless it was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity. अगर ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं लिया गया था, नहीं रेज किया गया था एट द अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मतलब ट्रायल कोर्ट में, एंड इन ऑल केसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एट और बिफोर सच सेटलमेंट, और अगर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हुए थे तो एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ सच सेटलमेंट आपको रेज करना चाहिए था ये ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, एंड अनलेस देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, और अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हुई है तो इसको इट विल नॉट बी टेकन, इट दिस ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन विल नॉट बी अलाउड बाय एनी appellate और द रिविजनल कोर्ट. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई बिलीव आपको समझ में आ गया है. ये हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 21 में, सेक्शन 21 एंड 21A कैपिटल जब पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये नोट्स में आ गया था तो मुझे लगा कि एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन अगर नहीं है कोर्ट के पास और अगर उसने डिक्री पास करी है तो वो डिक्री वॉइड डिक्री होगी, एंड दैट विल बी अ केस ऑफ इनहेरेंट लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. लेकिन अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन या दोनों नहीं थे और ट्रायल मेरिट्स पे हुआ है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया पार्टी ने, और उसके बाद ट्रायल चलता गया, मेरिट्स पे डिक्री पास हो गई, तो उस केस में दैट डिक्री इज नॉट अ वॉइड डिक्री. ऑब्जेक्शन उसको एपेलेट कोर्ट में, रिवीजन कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं होगा. सेक्शन 21 कहता है कि नो ऑब्जेक्शन शैल बी अलाउड बाय एनी एपेलेट कोर्ट और द रिविजनल कोर्ट, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन. सेक्शन 6 हमने देखा, सेक्शन 3 सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स हमने देखा, सेक्शन 15 कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए. And after that, what is original jurisdiction? Original jurisdiction is the power to hear the case from the beginning. That is, बिल्कुल शुरुआत से सुनने की जो पावर होती है किसी भी केस को, उसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं. इसका मतलब इट्स अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. फर्स्ट इंस्टेंस, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे आपने कोर्ट सूट इंस्टीट्यूट किया है, ट्रायल कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता है. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ये होता है, जनरल मैं बता रहा हूँ, जनरली इट्स अ ट्रायल कोर्ट. नाउ आफ्टर दैट
वी सो सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, एक्सप्रेस इम्प्लाइड बार हम पहले देख चुके हैं. सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन को स्पेशल कोर्ट बना दिया है, कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया है. स्पेशल लॉ है, एक्सप्रेसली उसमें मेंशन कर दिया है. एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है कि इस ट्राइब्यूनल, ये ट्राइब्यूनल या फिर ये कोर्ट ही ट्राई करेगा इस सब्जेक्ट मैटर को, या फिर इन सारे लॉज के द मैटर्स पर्टेनिंग टू दिस पर्टिकुलर लॉ, इस पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड सारे मैटर्स को ये ट्रिब्यूनल या फिर ये कोर्ट ट्राई करेगा. दैट वाज अ सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन. एंड आफ्टर दैट दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या फिर पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन या फिर ये दोनों नहीं थे और फिर भी अगर ट्रायल हुआ है एंड इफ द ट्रायल वाज ऑन मेरिट्स, तो ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं किया जाएगा. सेक्शन 21 मैंने आपको बताया कि क्या क्या है, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.